friends, welcome back. I hope you all have understood the whole chapter. If you have any doubt, you can ask me. So, today we are going to fill the exercises. So, first one is state whether the given statements are true or false. First one is Rubina was a curious and strong minded girl. रूबीना एक क्यूरियस और स्ट्रॉन्ग माइंडेड गर्ल थी. यस, इट्स ट्रू. सो राइट ट्रू. सेकेंड वन इज grandfather returned with a bag of popcorn from the garret. Here's a spelling mistake. It's not garnet, it's garret. So उनका मतलब है कि ग्रैंडफादर जब गैरेट से वापस आए तो बैग ऑफ पॉपकॉर्न था. नहीं, फॉल्स. वो एक मैजिकल चेयर लेकर आए थे. सो इट्स फॉल्स. थर्ड, एवरीवन रश्ड टू हेल्प रुबीना. सब लोग भागे रुबीना की हेल्प करने के लिए. सो आंसर इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि सब लोग नहीं भागे थे, सिर्फ उसके 3 बेस्ट फ्रेंड्स आए थे. फोर्थ, रुबीना रियलाइज्ड दैट शी हैड वेरी फ्यू ट्रू फ्रेंड्स. रुबीना ने रियलाइज़ किया दैट उसके बहुत ही कम सच्चे दोस्त हैं. येस, इट्स ट्रू. फिफ्थ, द मैजिकल चेयर वॉज इनविजिबल. जो मैजिकल चेयर थी वो इनविजिबल थी, मतलब वो दिखाई नहीं देती थी. सो येस, इट्स ट्रू. So moving on, complete the following. First one is Rubina accepted the challenge without reluctance. ये सेंटेंस आपको पीछे चैप्टर में भी मिल सकता है, इसीलिए आप चाहें तो पीछे टर्न करके देख सकते हैं. सेकेंड, इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर डिज़ाइन. आपको लिखना है बाय एडवांस टेक्नोलॉजी. Third one is she fell again, causing more. Answer is surprised look. Fourth, that evening the 4 children went to Rubina's. तो आपको लिखना है grandpa to pay out the bet. BET bet. Bet मतलब शर्त. Fifth, the magic chair test will be passed by. So you have to write the true friends. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. सी आंसर with reference to context. First one is I have exactly what you need. It's in the garret. Wait here a minute. So इस sentence से related we have 2 questions, A and B. We are going to answer the A. What was there in the garret? So answer is there was an invisible chair in the garret. You have to write this. Second question is why did he give it to Rubina? Means magical chair Rubina को क्यों दी थी? He gave it to Rubina so that she could find out who were her real friends. क्यों दी थी? क्योंकि वो पता लगा सके कि उसके सच्चे दोस्त कौन से हैं. So we have second sentence and it is you are about to see something marvelous. ये sentence है. Now turn the page. Next page, इसमें भी second sentence से related 2 question है, A and B. First is who said this to whom? So answer is Rubina said to her friends. आपको लिखना है रुबीना ने अपने दोस्तों से बोला. बी, वॉट वॉज सो मार्वलस अबाउट इट. मतलब उसमें ऐसा शानदार क्या था. सो यू हैव टू राइट इट वॉज मार्वलस बिकॉज इट वॉज एन इनविजिबल चेयर. वो मार्वलस यानी कि शानदार क्यों था? क्योंकि वो एक इनविजिबल चेयर थी जो कि नहीं दिखाई दे रही थी. सो third sentence is many others whom she had thought to be her friends had nothing but made fun of her. ये हमारा third sentence है. Again we have 2 questions related to this. First one is why was everyone laughing at her? मतलब सब लोग रुबीना पर क्यों हंस रहे थे? Everyone was laughing at her because
She fell down while trying to sit on an invisible chair. Means जब वो उस इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश कर रही थी तब वो गिर गई, इसीलिए सब लोग उस पर हंस रहे थे. सेकेंड, what had she realized about her classmate? मीन्स उसने अपने क्लासमेट के लिए क्या रियलाइज़ किया. शी realized that all her classmates were not her true friends, which means कि उसे बाद में रियलाइज़ हुआ, उसमें बाद में ये पता चला दैट उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसके सच्चे दोस्त नहीं हैं. सो कंप्लीट हुआ. नाउ विल टर्न द पेज नंबर 12. Now we are going to solve E. Place the antonyms in the table to make correct pair of opposites. Means opposite words लिखने हैं हमको. Antonyms मतलब क्या होता है? Opposite word. Means जैसे day होता है, day मतलब दिन होता है, उसका opposite हम लोग क्या लिखते हैं? Night. So let's get start. First one is big. Big मतलब बड़ा, इसका opposite हम क्या लिख सकते हैं? Small. सेकेंड गुड. गुड मीन्स अच्छा, इसका ऑपोजिट हम क्या लिख सकते हैं? बैड मीन्स बुरा. थर्ड वेट. वेट मीन्स गीला, हम इसका ऑपोजिट लिख सकते हैं ड्राई मीन्स सूखा. क्लीन मीन्स साफ, इसका ऑपोजिट मेसी मीन्स बिखरा हुआ. फिफ्थ एनिमी. एनिमी मतलब होता है हमारे दुश्मन, इसका ऑपोजिट हम लिख सकते हैं फ्रेंड. ऐसे ही आपको पूरे 16 फिलअप करने हैं. इट्स वेरी ईजी. आई होप यू कैन डू इट, बट आई हैव टू रीड दिस फॉर यू. सो सिक्स्थ स्लो, इसका ऑपोजिट है फास्ट. डिफ़िकल्ट ईजी. डे का ऑपोजिट नाइट. हैप्पी एंग्री. सॉफ्ट हार्ड. पुअर ऑपोजिट है रिच. अगली का ऑपोजिट है प्रिटी. क्वाइट का नॉइजी. रॉन्ग का राइट. हॉट का आइसी. अवेक का अस्लीप. सो हमने सारे अपोजिट्स रीड कर लिए. आप चाहें तो वीडियो पॉज करके यू कैन राइट इट डाउन. सो नेक्स्ट अप वी हैव सिनोनिम्स. ये हमारे ऑपोजिट्स थे. नाउ वी हैव टू फिल द सेम मीनिंग. मीन्स अगर जो हमें वर्ड दिए हैं उसका सेम मीनिंग लिखना है. फ्रेंडली, अमीएबल. फ्रेंडली मतलब सबसे घुल मिल के बात करना, मैंने आपको चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था. ओपनली टॉक करना, अच्छे से बात करना. बी काइंड मीन्स फ्रेंडली. सेकेंड वी हैव काम. काम मीन्स एकदम शांत, बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं होना. इसका सेम मीनिंग है पैसिफाई. इसी तरह हम लोग सारे कर लेंगे. जॉइन, लिंक, कंपटीशन, रेवलरी, ऑफुल, टेरिबल, faith, trust, pretty, beautiful, energetic, active. I hope you all have understood. Now next one we have a matching. So we're gonna do first is e-payment. e-payment का हम लोग मैच करेंगे बी वाले से. पेमेंट थ्रू द इंटरनेट, मतलब जो हम पेमेंट करते हैं इंटरनेट के थ्रू वो होता है ई पेमेंट. सेकेंड इज सोलर पैनल, इसका हम लोग मिलाएंगे डी से. कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड वन वी हैव प्रिंटर. प्रिंटर का हम लोग मैच करेंगे कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू हार्ड कॉपी. नेक्स्ट अप वी हैव स्कैनर. स्कैनर का हम लोग मैच करेंगे कन्वर्ट्स डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल डेटा. नेक्स्ट लास्ट एटीएम मशीन. एटीएम मशीन का अलाउज द कस्टमर टू विदड्रॉ कैश, ये तो सबको पता ही होगा. नाउ नेक्स्ट वी विल टर्न द पेज नंबर 13. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज we have to understand the sentences. So kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences given here. First one is declarative sentences. मैंने आपको 4th क्लास में भी ये sentences समझाए हैं, बट जिनके लिए न्यू है एक और बार फिर से.
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जब हम कोई स्टेटमेंट करते हैं, मीन्स व्हेन वी एक्सप्लेन एनीथिंग, व्हेन जब हम सामने वाले को कुछ बता रहे होते हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कुछ अनाउंस कर रहे होते हैं, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड अप वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई भी कमांड मीन्स किसी को ऑर्डर देना कि उसे क्या करना चाहिए, मेक सजेशंस मीन्स किसी को एडवाइस देना, और मेक रिक्वेस्ट अगर हम किसी को प्लीज़ करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस में आती हैं। थर्ड अप वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। सेकेंडली उस सेंटेंस को पढ़ के हमको पता चलता है दैट वो कुछ चीज़ पूछ रहा है। मोस्टली इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वॉट, विच, whom, WH वाले वर्ड होते हैं, एंड कभी कभी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर अगर सेंटेंस के पहले आती है तो वो भी इंटेरोगेटिव होता है। Next up, we have exclamatory sentences. Exclamatory sentences are used to make exclamations. Exclamation means when we are happy, when we are sad, when we explain our emotions. जब हम explain करते हैं, हम खुश हैं, दुखी हैं, तो उन sentences को exclamatory sentences कहते हैं। इसके लास्ट में एक exclamation mark भी लगता है। So here it is a line, any sentences that uses negative words like not or never is called a negative sentences. ये सबको पता है कि not और never जो sentence पे आता है उस sentence को negative sentence कहते हैं. So moving on, identify the type of sentence and then make one sentence of that type on your own. So what we have to do is first we have to find out that given sentences of what type, कौन से टाइप का सेंटेंसेस है, एंड देन हमें उसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाना है. फर्स्ट अप वी हैव वॉच आउट. इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ ये. अब व्हाट वी हैव टू डू इज़ नाउ हमें एक ऐसा सेम सेंटेंस बनाना है. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लुक आउट और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है. सेकेंड, डू नॉट कम विथ मी. अब देखो इस सेंटेंस में वो हमें ऑर्डर दे रहा है, मीन्स कमांड कर रहा है दैट मेरे साथ मत आओ. सो द टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ इम्पेरेटिव एंड हमें सेम सेंटेंसेस बनाना है. तो डू नॉट प्ले ऑन द रोड, इसमें भी हम लोग कमांड कर रहे हैं कि रोड पे मत खेलो. थर्ड, चेरी लव्स गोइंग फॉर वॉक्स. अब इसमें वो हमें एक्सप्लेन कर रही है कोई चीज़ डिक्लेयर कर रही है. क्या कि चेरी लव्स गोइंग फॉर वॉक, उसे वॉक करना पसंद है, उसे वॉक पे जाना पसंद है. तो वो कोई चीज़ बता रही है, तो इसीलिए हम लिखेंगे डिक्लेरेटिव. और इसका मिलता जुलता सेम सेंटेंस जो होगा वो है माई फादर गोज़ टू ऑफिस. इसमें भी हम बता रहे हैं दैट मेरे फादर ऑफिस जाते हैं. फोर्थ, इज़ ही डन विथ हिज वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसमें WH, हाउ, वाई ये सब नहीं है. मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से पहले आ जाती है, यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब है इज़, वो सेंटेंस से पहले आ गई है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये किसका साइन हुआ, इंटेरोगेटिव का. सो हम मिलता जुलता सेंटेंस बनाएंगे, इज़ ही विजिटिंग ज़ू, और उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे. नेक्स्ट फिफ्थ वन, अलास इट इज़ रेनिंग. बारिश हो रही है, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है. अलास ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है, यूज़ किया है, इसलिए कौन सा टाइप हुआ, एक्सक्लेमेटरी. इसका मिलता जुलता सेंटेंस बनाएंगे, वाओ व्हाट अ वंडरफुल रेनबो. नेक्स्ट, वी शुड मीट मोर ऑफन. हमें मिलते रहना चाहिए. उसने सजेस्ट किया कि हमें मिलते जुलते रहना चाहिए, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव. अब हम इसके लिए एक और सेंटेंस बनाएंगे, यू शुड वियर नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म. ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें वो एडवाइस कर रहा है दैट यू शुड वियर नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म. सो नाउ आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा दीज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. Now next, page number 14 in our last exercise.
tick the correct option for each sentences. Now what we have to do is, उन्होंने हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं. We have to choose one correct option. So first one is dash, the wound is very deep. Dear me or bravo? Then we will choose dear me. Dear me, the wound is very deep. Second, dash, the food tastes yummy. मतलब फूड बहुत यमी है, तो हम यक तो नहीं करेंगे, इसलिए वाव. डैश, द बॉय स्नीज्ड. ऑप्शन इज अच्छू या हाय. अब हम हाय नहीं यूज़ करेंगे, अच्छू, द बॉय स्नीज्ड. फोर्थ, डैश, द बेबी इज स्लीपिंग. अब बेबी सो रहा है, तो हुर्रे या तो हम शू यूज़ करेंगे, एस डबल एच. फिफ्थ, डैश, आई ब्रोक द जार. इसमें हम वाव तो यूज़ नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे ओ नो, आई ब्रोक द जार. I hope you all got it. So, done for this session.